تو آپ اور میں جو تو مسیح میں ہیں وہ نئی مخلوق ہے، اور جو نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو نیا کریچر نئی مخلوق بولتے رہیں تو ان کے بولنے سے کچھ ہو نہیں جائے۔ مسیح میں وہ ہے جو مسیح کا ہے۔ آپ کو اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا اور آپ کو مسیح کے لیے جینا پڑے گا اور اپنی صلیب کو اٹھانا ہوگا، وہ نیا مخلوق ہے۔ ہاللیلویہ۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج جب میں خداوند کی پریزنس میں تھا اور میں نے خداوند سے کہا، خداوند میں تیرے لوگوں کو جا کے کیا کہوں، تو خدا نے کہا جا کے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کر۔ ہاللیلویہ۔ ہاں، بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ ایک گیدڑ ہے مگر اس نے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میں شیر ہوں۔ شرط یہ ہے، بائبل میں یہاں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ تو آپ اور میں جو تو مسیح میں ہیں وہ نئی مخلوق ہے، اور جو نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو نیا کریچر نئی مخلوق بولتے رہیں تو ان کے بولنے سے کچھ ہو نہیں جائے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسیح میں وہ ہے جو مسیح کا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہاں، مسیح میں وہ ہے جو مسیح کا ہے۔ اس کی پرانی چیزیں دیکھو سب نہیں ہوں گی۔ ہمارے اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا نے ہر آدم کے لیے ایک ہوا بنائی اور ہر ایک ہوا کے لیے ایک آدم بنایا، مگر جب وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے، اسے انگوٹھی پہنا لیتا ہے، تو اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اسے جہاں مرضی لے کر جانے کے لیے، جب مرضی لے کر جانے کے لیے اور جہاں سے مرضی روکنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، کوئی بھی شخص کسی لیڈیز کو بندش میں نہیں رکھ سکتا جب تک وہ اس کی شریعت میں نہ ہو، اس کے نکاح میں نہ ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح مسیح میں جو ہوگا، جو اس کے حکموں کے نیچے ہوگا، وہی نئی مخلوق۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی لیے آج جب میں خداوند کے پاس گیا، خداوند سے کہا خداوند میں تیرے لوگوں کو کیا کہوں، تو خداوند نے کہا جا کے ان سے کہے کہ 2 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 17 آیت کو اپنا ریما وچن بنا لو۔ کیا کر لو؟ ریما وچن۔ ریما وچن وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ خدا نے ڈائریکٹلی بات کی، چاہے وہ اپنے کلام میں سے یا اپنے پاک روح کے ذریعے۔ ہاللیلویہ۔ یہ لوگوس ہے، یہ بائبل جو ہے لوگوس ہے، یہ سب کے لیے ہے، مگر ریما ورڈ اس کے لیے ہے جو خدا کا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج اسے ریما ورڈ بنا لینا ہے اپنی بائبل پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنے گھر میں، جہاں کہیں آپ سب سے زیادہ ٹھہرتے ہو، رکتے ہو، کچن میں، گاڑی میں، جاب پر، آفس میں، اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر، اپنے شیشے کے آگے، وہاں یہ لکھ کے لگا دو، میں مسیح میں نئی مخلوق۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میری چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب کچھ نیا ہو گیا۔ آپ کا آج سب کچھ نیا ہو رہا ہے یسوع مسیح کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج اگر میں آج کے کرسچنوں سے سوال کروں نا آپ کون، تو وہ اپنا نام بتائے گا، اپنی کاسٹ بتائے گا، ہاں، اپنا ایریا بتائے گا، مگر میں آپ کو بتاؤں آپ اور میں ہیمنلی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم نئی مخلوق ہیں۔ تو اسی لیے نہ ذات کچھ رہی۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ہیمنلی رشتے ٹھکراتے ہوئے، کیوں؟ یہ ہے جی ساری ذات ہے، اسی مٹو ہاں تے اے مٹو نے، اسی گیلا تے اے گیلے نے، ہاں اسی اور پتہ نہیں کی کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، کوئی پٹی، کوئی گیل، کوئی سوترا نہ رہا۔ جو مسیح یسوع میں آ گیا وہ نئی مخلوق بن گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ ذاتیں جانوروں کی ہوتی ہیں، یہ اچھی نسل کا گھوڑا ہے، یہ نیچی نسل کا گھوڑا ہے۔ آپ خدا کی صورت اور شبیہ پہ بنے ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ ہاں، اس لیے آپ مٹو، گل، پٹی کوئی بھی نہیں ہو، آپ مسیح میں نئی مخلوق ہو۔ آج کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے نا آپ کی ذات کیا ہے، تو کہنا میں آدم ذات سے ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میں یسوع مسیح کی ذات سے ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی لیے آج کے بعد یہ جو بڑا فخر سے آپ کہتے ہیں نا اسی پٹیاں، یہ نہیں کہنا۔ ہاں، آپ نے کہنا میں نیا مخلوق ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھے نا تمہاری ذات کی ہے، تو کہنا میں نئی مخلوق ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے لوگ بڑا اتراتے ہیں اپنی ذات بتاتے ہوئے، ہاں میں پٹیاں، میں گیلا، میں مٹو ہوں، میں راجپوت ہوں۔ ہاں، کوئی کچھ نہیں رہا، ہم یسوع میں آ گئے، اب نئی مخلوق ہو گئے۔ آمین، آمین۔ تو اسی لیے آج کے بعد آپ کوئی گیل نہیں رہے، کوئی پٹی نہیں رہا، نہ مرد مرد رہا، نہ عورت عورت رہی،
सब खुदा की नजर में बराबर हो गए। आमीन। तो इसीलिए आपने आज के बाद अपने आप को नया मखलूक जानना है और उसमें जीना है। आमीन। और ये जो है नए मखलूक, ये रवैयों की तब्दीली का नाम है। क्या है? सारे चर्च बोले, रवैयों की तब्दीली का नाम है। अगर आप नशा करते हैं, आप वो नशा छोड़ देंगे, आप नया मखलूक है। अगर आप चुगली करते हैं, आप चुगली नहीं करेंगे, आप नया मखलूक है। अगर आप चोरी करते हैं, आप चोरी नहीं करेंगे, आप नया मखलूक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये रवैयों की तब्दीली का नाम नया मखलूक है। और कोई आपके कान नहीं बड़े हो जाएंगे या आपके सींग निकल आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा है कि आप रहोगे तो इंसान, मगर नया इंसान बन जाओगे। हालेलुया। हाँ, आपको पता है निकोदेमस आया, यीशु मसीह का जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, यीशु मसीह ने उससे कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। वो शरा का आलिम था, फकी फरीसी था। तो उसे कहता है ये क्यों कर हो सकता है कि मैं बूढ़ा होकर फिर मैं जाऊं अपनी माँ के पेट में और फिर से पैदा हूं। तो आपको मैं ये बताना है चाहता हूँ, जब आप और मैं बैप्टिज्म लेते हैं ना, हाँ, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, क्यों हम कहते हैं पानी वाला बपतिस्मा लो? ताकि सबसे पहले आपको पता चले, आप बालिग हो, आपको गुनाह का और खुदा के साथ चलने का फर्क पता हो। मेरी बात समझ में आ रही? और उसके बाद आपको जब गुनाह का पता चल जाए तो आप फिर बपतिस्मा लें, फिर तौबा करें। छोटे बच्चों को देते हैं बपतिस्मा। वो छोटे बच्चे को मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब छोटे बच्चों का बपतिस्मा होता है, क्या उसे गुनाह का पता होता है? उसे तो ये भी नहीं पता होता उसे उसकी माँ ने उठाया या उसके बाप ने उठाया या बाबूजी ने चुकिया है, ऐसे ही ना। तो फिर उसको गुनाह का कैसे पता चल गया? इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है। तो नई मखलूक तभी बन सकता है जब हमें दुनियादारी का पता हो। और एक और चीज, वो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मर जाते हैं। जब आप और मैं बपतिस्मा लेते हैं, पानी में जाते हैं ना, तो हम जैसे कब्र में इंसान चला जाता है ऐसे कब्र में चले जाते हैं। और जिस तरह एक मुर्दे के ऊपर मट्टी डाल दी जाती है और उसके ऊपर जब मट्टी आ जाती है, वो दुनिया के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं रह जाता है, ऐसे ही ना। हाँ, और उसके बाद जब उसके ऊपर मट्टी आ जाती है, जब हमारे ऊपर पानी आ जाता है, हमारे ऊपर मट्टी आ जाती है। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, फिर लौटा है। तो जब हम मसीह यीशु में मर जाते हैं, तो जिस तरह यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठते हैं। हमारे सारे पाप, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, हमारे बाप दादा के लानते, तमाम जादू टूने, सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये वचन पूरा होता है कि जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। देखो चर्च जरा फिर ग्लेरी के साथ बोलो, देखो सब नई हो गई। आपका सब कुछ नया हो जाता है क्योंकि आप मर चुके हो, आपका खाता खत्म हो चुका है। हाँ, दाऊद कहता है खुदावंद कब्र में तेरी सताइश कौन करेगा? हाँ, लोग 50-50 हजार, 80-80 हजार, लाख 1.5 लाख रुपए कब्रों के ऊपर लगा देते हैं। और मेरा मानना ये है कि आप वही कब्र के पैसे अगर जिंदे को खिलाए होते थे, बेबे 2 साल और जिंदा रहती। हाँ, लोग जाके मार्बल लगवाते हैं और उसके बाद जाकर जब किसी रिश्तेदार की या मोहल्लेदार की डेथ होती है तो उन्होंने छाड़ के सबना पहला जाके अपनी हमारा मार्बल से अपने पेरा मार्बल साफ कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आज आपसे कहूंगा, आपने करना क्या है? आपने मसीह में जीना है। और याद रखिएगा, जब कोई मर जाता है उसका हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है। आसमान पर ना शौहर होगा, ना बीवी होगी। ऊपर आसमान पर कोई रिश्ते नहीं होंगे, सब फरिश्तों की मानिद होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आप ये इन चीजों से निकले कि मैं अपनी अम्मा जी मार्बल लगवाना है तो मैं अपने बेरे मार्बल लगवाना है। आप मट्टी है, हम जब कोई मरता है हमारा अजीज, हम क्या कहते हैं? तू खाक है और खाक में लौट गया, ऐसे ही ना। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप खाक नहीं हो। हालेलुया। हाँ, आप नूर के फर्जंद हो। आप जब मसीह यीशु में आ गए ना तो आप खाकी नहीं रहे बल्कि रूहानी बन गए। हालेलुया, हालेलुया। अब आपकी जात बदल गई। पहले आप आदम से पैदा हुए थे, पहले आदम से, जिसके वसीला से गुनाह ज़मीन पे आया, और आप अब दूसरे आदम से पैदा हुए। अब आप रूहानी बन गए, इसलिए आप नूर के फर्जंद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए अब आप जो है ना खाक नहीं रहे, आप क्या बन गए? नूर बन गए। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के क्या हो?
चर्च को क्या हो? तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो, तुम जमीन के नमक हो। यीशु मसीह ने आपको खाक से निकालकर आपको एक खास बना दिया। हालेलुया। हाँ, अब आप पुराने नहीं रहे बल्कि मसीह यीशु में आ गए। तो इसीलिए पुरानी चीजें जाती रही। पहले आप खाकी थे, अब आप रूहानी बन गए। हालेलुया। पहले आप तारीकी थे, अब दुनिया के नूर बन गए। हालेलुया। हाँ, ये है मसीह यीशु में नए मखलूक। आपको पता है यहाँ एक शर्त है, सिंह दोबारा पढ़ो काके। इसलिए अगर कोई जब अगर लग जाता है ना, तो पिछला जुमला उसकी पावर और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर जहां अगर आ जाता है ना, तो वहां फिर जो है ना सवालिया निशान बन जाता है। जी आगे। तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। आपने देखना है, क्या करना है? देखना है। ऐसा नहीं आपने आज बपतिस्मा लिया है, हाँ, तो आप बिल्कुल तब्दील हो जाओगे। आपने जब देखा है कि जब हमारे घर पे न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, वो पहले दिन ही उठकर बोलने तो नहीं लग जाता, हाँ, या पहले दिन ही वो चलना शुरू नहीं हो जाता। हम उसकी केयर करते हैं, हम उसे ठंड से बचाते हैं, हम उसे गर्मी से बचाते हैं, हम उसकी केयर करते हैं। फिर उसके बाद उसको चलने के लिए उसकी हेल्प करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं। फिर उसके बाद वो 1-2 कदम लेता है, फिर वो गिर जाता है, फिर वो उठता है, फिर 3-4 कदम लेता है, फिर वो बैठ जाता है। तो ऐसे ही मसीह के साथ नया मखलूक है। आप एकदम से भागना नहीं शुरू कर दो। हालेलुया। आप चलोगे और आप डायरेक्ट पापा मामा खाला मासो फुफो नहीं बोलने लग जाते। पहले बच्चे कैसे बोलते हैं? तुतला आकर आधे लफ्ज बोलते हैं, ऐसे ही ना। हाँ, इसी तरह मसीह में आप आकर थोड़ा थोड़ा करना शुरू हो जाओगे और उसके बाद फिर आप दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और आगे जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत, यहाँ एक खुदा के कलाम में से हमें एक चीज मिलती है, लिखा जितनों ने उसे कबूल किया, यानी कि किसे? यीशु मसीह को। उसने उन्हें, जिन्होंने उसे कबूल किया, यीशु ने उन्हें खुदा बाप के क्या करने का? फर्जंद क्या होता है? बेटा। और आपको मैं बात बताऊं, मसीह यीशु में आकर ना मर्द रहा ना औरत रही, सारे बराबर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जितनों से मुराद ये है, वो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। यानी कि उन्हें, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया अपना शख्सी निजात दहिंदा, और जिस तरह खुदा का बंदा कहता है, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये उनके लिए है जिनके अंदर यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी माँ मेरी बहन वो है जो मेरा कलाम सुनते और उसके बाद चंदा डालते और चले जाते। क्या कहा? मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं, वो मेरी माँ और मेरी बहन वो है। अब सोचो, आज अगर मोहल्ले के अंदर किसी का भाई या किसी का बाप काउंसलर हो या किसी का बाप हवलदारी हो, और अमल है जो बड़ा टैका होता है। सोचो, जो इस दुनिया का क्रिएटर है, जिसके वसीले और जिसके लिए ये सारी दुनिया बनी है, आप उसके बेटे बेटियां बन गए, उसके हम मिराज बन गए। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो आप कैसे मखलूक बन गए हो। तो इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा, शर्त है खुदा की, देखा जितनों ने उसे कबूल किया। क्या कबूल किया? अपना सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, आज कई लोगों का, उनके घर की डेकोरेशन, उनके घर का फर्नीचर, उनके घर की खूबसूरती, उनकी बीवी, उनके बच्चों का फ्यूचर, हाँ, उनकी माल और शोहरत, ये सारी चीजें उनका खुदा बनी हुई है, जिन्होंने सब कुछ रद्द करके यीशु मसीह को सब कुछ ले लिया। हाँ, बाइबल में लिखा है खुदा की बादशाही ऐसे है कि जैसे एक शख्स को खजाना मिला और उसने उसे उस खेत में दफन कर दिया और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। हाँ, लोगों की नजर में तो वो बेवकूफ है कि उसने अपना सब कुछ बेच दिया है एक जमीन के टुकड़े के लिए, मगर उसे पता है कि इस जमीन के टुकड़े के अंदर खजाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह खुदा की रास्तबाजी है, खुदा के साथ चलना है। जब आप अपना सब कुछ बेच देते हो ना, पतरस कहता है, यीशु हमने अपना सब कुछ, अपना कारोबार, अपना घर बार तेरे पीछे छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह का, पतरस
यहाँ 100 गुना और ऊपर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। ये किनको मिलेगी? जिन्होंने यीशु मसीह के लिए सब कुछ त्याग दिया। हाँ, आज तो लोग दो रिश्तेदार ही आ जाए हमारे घरों में तो लोग चर्च नहीं आते। चर्च नहीं पास सब कार रोने आए सर, तो काहे के नहीं मखलूक। हाँ, यीशु मसीह ने कहा अगर कोई अपनी माँ या अपने बाप को या अपनी जान को या किसी चीज को मुझसे ज्यादा अजीज रखे वो मेरे लायक नहीं। आपको अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा और आपको मसीह के लिए जीना पड़ेगा। हालेलुया। और आपको सब चीजों को इनकार करके यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा और अपनी सलीब को उठाना होगा। वो नया मखलूक है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है जो मसीह का नहीं, मसीह उसका नहीं। कैसी बात है ये? जो मसीह का नहीं, मसीह उसका नहीं, तो फिर काहे के नए मखलूक? हाँ, नए मखलूक वो हैं जो मसीह के हैं, जो मसीह में हैं और मसीह उनका है। आप और मैं, हम ये समझते हैं कि जी हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं तो असी ठेकेदार। ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, यीशु मसीह ने कहा है, उन्होंने लोगों ने कहना है खुदावंद हमने तेरे नाम पर इतने बड़े बड़े काम किए, इतने मौजज़े किए, हाँ, इतनी बुदरुएं निकाली, इतना ये कुछ किया। तो यीशु मसीह ने कहना तुम्हारी मेरी वाकफियत नहीं। ये किनको कह रहा है खुदा? खादमों को। हाँ, जब खादमों की ये हालत है कि वो इतने मिरेकल करने के बाद, इतने बड़े बड़े साइन एंड वंडर्स करने के बाद मसीह इनको नहीं जानता, तो जेड़े क्रिसमस से क्रिसमस या ईस्टर के ईस्टर या गुड फ्राइडे के गुड फ्राइडे चर्च जाने वाले हैं, वो भी इस वजह से कि साथ देख देनी है, मेरे मुंडे ने तो कलाम सुनाना है, मेरी कुड़ी दी उत्थे आए थे इसलिए चर्च गए। हाँ, तो क्या है कि वो मसीह, मेरी बात समझ में आ रही है? मसीह का वो है जिसने अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ पीछे कर यीशु मसीह के पीछे हो। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह यीशु का नहीं, मसीह उसका नहीं। तो इसलिए खुशफहमी में ना रहे लोग कि जी मैं मसीह में नया मखलूक हूँ, तो सब कुछ पुराना है। हाँ, तो अपने आप को दिलेरी और तसल्ली, झूठी तसल्ली दे के बैठा हुआ है कि मैं मसीह यीशु में नया मखलूक हूँ। वो पुरानी चीजों का सारा वो बुचकड़ी उठाकर, हाँ, पीछे पीछे चल भी रहा है और छोड़ भी नहीं रहा और कह रहा है मैं नया मखलूक हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं। हाँ, आपने कभी डाये होते हुए देखा है? दुपट्टों को जो कलर करते हैं, कपड़ों को जो कलर करते हैं, हम कपड़ा लेकर जाते हैं, वो किसी और कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है या किसी व्हाइट कलर का होता है। हम उसे जाके कहते हैं इसे ग्रीन कर दो, इसे ब्लू कर दो, इसे रेड कर दो। वो कलर के अंदर जब डिप करता है तो जब वो बाहर निकलता है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है या कैसा होता है? जैसा हमने उसे कहा था। इसीलिए जब हम मसीह में आ जाते हैं, हम उसमें रंग जाते हैं, उसमें डिप हो जाते हैं। तो कैसा मुमकिन है कि जब हम एक चीज को हमने डिप कर दिया व्हाइट को रेड के अंदर, तो जब वो बाहर निकलेगी तो व्हाइट की व्हाइट रहेगी। हाँ, मगर आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो मसीह में तो चले गए मगर हाले भी व्हाइट से व्हाइट ही। हाँ, और कहते फिर रहे हैं हम मसीह यीशु में नई मखलूक है। उन्होंने पुरानी आदतें छोड़ी नहीं, वो तमाम नशे छोड़े नहीं, जनाकारी छोड़ी नहीं, चुगली छोड़ी नहीं, निंदा करनी छोड़ी नहीं और खादमों के खिलाफ बोलना छोड़ा नहीं। और कहते ऐसी नई मखलूक नहीं है। वो नई मखलूक तब है कि जब हमारी बोली तब्दील हो जाए, जब हमारा देखना तब्दील हो जाए, जब हमारा सुनना तब्दील हो जाए। ये है नया मखलूक। हालेलुया। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद कहते हैं? हाँ, यीशु मसीह ने तो हर जगह पे कहा कि अगर तुम मेरी बातों पे अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो। उसने तो आपको साफ उन लोगों को मना कर दिया है कि जो उसकी बातों पे नहीं चलते, उसकी तालीम पर नहीं चलते, वो उसे खुदावंद भी ना कहे। हाँ, और अपने नाम के आगे फलाना मसीह लिखने की जरूरत भी ना करें, क्योंकि यीशु मसीह ने तो साफ मना कर दिया। हमारे यहाँ मैंने देखा है आज से 12-15 साल पहले वो अंकल या वो भाई गलत कमाई के पैसों से अपना घर बना के और उसके अपने घर के ऊपर बड़ा बहुत बड़ा करके लिखा होता था खुदावंद मेरा चुपान है, उसके बाद फलाना मसीह। हाँ, काहे का वो मसीह जो मसीह का नहीं, मसीह उसका नहीं। हालेलुया। हाँ, लोग हलाक हो गए हैं और इसी खुशफहमियों में कि हम क्रिश्चियन हैं। और मैं तो अफसोस करता हूँ लोगों के ऊपर जब लोग ये कहते हैं कि जी जब ये मसीह आएगा वो पापों में, बदियों में, कमजोरियों में मर गया। लोग पास्टर साहब या लोग उस पर मट्टी डाल के कहते हैं जब मसीह यीशु मसीह आएगा ये जी उठेगा। वो जी तो उठेगा
मगर एक चीज के लिए उठेगा, हमेशा की आग के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? वो जी उठेगा मगर हमेशा की आग के लिए, जो आग बुझती नहीं और जिसका कीड़ा मरता नहीं। मेरे पास कल एक क्वेश्चन आया कि पास्टर जी, मैं आजकल जैसे मैं प्रे कर पा रहा था, मैं वैसे प्रे नहीं कर पा रही, मैं प्रे नहीं कर पा रहा, मैं जैसे बीज बोता था मैं वैसे बीज नहीं बो पा रहा। मैं आपको एक बात बता दूं, मसीह जिंदगी रोज जीने का नाम है, मसीह जिंदगी रोज लड़ने का नाम है। हालेलुया। आप यहाँ एक जंग में हो, एक मैदान में हो, और ये मुझे बताएं कौन सा सिपाही या कौन सा एक सोल्जर मैदान जंग में रिलैक्स होता है? वही होता है जो डरपोक होता है, जो पत्थरों के पीछे छुप कर बैठा होता है कि कदों जंग खत्म होएगी तो कदों मैं घर जाऊंगा। ऐसे ही ना। मगर जो सही योद्धा होगा, हाँ, जो सही वीर होगा, वो आगे लड़ रहा होगा। यहाँ तो वो बोलेगा जी यहाँ तो मैं नहीं थी, यहाँ आज वो नहीं। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह मसीह के साथ हमें जीना है और शैतान के साथ हमें लड़ना है। हालेलुया। आप चर्च के अंदर बड़े से बड़ा बीज बो दो, आप चर्च के अंदर कारपेट बिछवा दो, बड़े से बड़ा झूमर लगवा दो, चर्च के अंदर डिनर करवा दो, लंच करवा दो, शैतान आपको रोकेगा नहीं। मगर जब आप प्रे में बढ़ना शुरू कर दोगे, उसे पता चल जाएगा कि ये मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, ये तो बचेगा, अपना घराना भी बचा लेगा। हालेलुया। तो इसीलिए वो आपको प्रे करने से हमेशा रोकता है। और बीज लोग कहते हैं कि जी हम कभी बो देते हैं, कभी नहीं बोते, या कंटिन्यूसली नहीं रख पाते। वो इसलिए नहीं क्योंकि शैतान को पता है कि ये बीज बोएगा। बाइबल ये कहती है जो तू बोएगा वो तू काटेगा। ये बीज बोएगा, ये फाइनेंशियली स्पिरिचुअली ब्लेस होगा। इसलिए शैतान आपको बीज बोने से भी रोकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा मैं उसको तो समझाऊंगा, वो अभी जिंदगी देख रही होगी, उसके साथ साथ आप भी सीखें कि आप कंटिन्यू बिला नागा दुआ करो। यीशु मसीह ने कहा बिला नागा दुआ करो, यानी कि ये बिला नागा करनी है। जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कहता है कि आपने 3 दिन गोलियां खानी है या आपने 3 टाइम गोलियां खानी है। आप जाके डॉक्टर को कहो कि डॉक्टर साहब मेरा बुखार नहीं उतरा या मेरा इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ, डॉक्टर आपसे पूछेगा आपने दवाई पूरी खाई? आपको नहीं जी मैंने 2 दिन गोली नहीं खाई। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, कैसे आप सही है? इसी तरह आप बिला नागा दुआ करोगे तो शैतान आपसे भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो। क्या कहा? सब बोलो, क्या करो? इब्लीस का मुकाबला करो। कैसे करना है? इब्लीस तो हवा है, हवा को मुक्के कौन मार सकता है? ये उस वक्त आप मार सकते हो जब आप भी उसके मुताबिक बन जाओगे, आप भी रूह में आ जाओ। इब्लीस क्या है? बद्द रूह, आपके अंदर पाक रूह है। हालेलुया। हाँ, तो जब आप रूह में आ जाओगे, आप इब्लीस का मुकाबला करोगे और बिना दुआ के आप लड़ नहीं सकते। आपकी शक्ल आप, और याद रखिएगा जो लोग बेचारे होते हैं ना, हाँ, जिनके पास सब पता नहीं क्यों, हाँ, वो बेचारे शैतान के फेवरेट होते हैं। जिन्हें कहते हैं पता नहीं क्यों, ये सब कुछ पता इसमें है। बाइबल बोलती है, दुनिया की वाहिद किताबें तो बोलती है। हालेलुया। इसके अंदर सब कुछ लिखा है। लिखा इब्लीस का मुकाबला करो, तब वो तुमसे भाग जाएगा। तो रोना, हाँ, तो एक्सक्यूज करना और कंधों पे चढ़ के बैठेगा। तो इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा आपने, अच्छा एक और चीज, एक जो खुशफहमी में लोग मुब्तला हैं, अपने पड़ोसी से पूछो क्या तो यकूब है? बाइबल ये कहती है कि जो यकूब है, गिनती 23 से इसमें लिखा है यकूब पर अफसून नहीं चलता और ना इस्राएल के लिए फाल कोई चीज है। हालेलुया। लिखा है यकूब पर क्या नहीं होता? अफसून नहीं होता, यानी कि जादू टूना नहीं होता। मगर आज बहुत से मसीह आके कहते हैं पास साहब रात में साढ़े भांडे खड़कते हैं। हाँ, इसका मतलब है आप यकूब नहीं हो। बाइबल तो ये कहती है यकूब पर जो है वो अफसून नहीं चलता और इजराइल, जो इस्राएल होगा उसके लिए फाल कोई चीज नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है जो यकूब है उस पर अफसून नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक यकूब बने नहीं, और उसके बाद अगर आप यकूब हो भी तो खुदा ने आपको इजराइल बना दिया। हालेलुया। लिखा है यकूब पर अफसून नहीं चलता और इजराइल के लिए फाल कोई चीज नहीं। लोग कहते हैं सियाने को जानने हैं, सियाने को पूछने हैं, मेरे यीशु से सियाना कोई दुनिया में नहीं। हालेलुया। हाँ, लिखा जो इस्राएल है उसके लिए फाल कोई चीज नहीं। लोग जाके आपके बारे में पता ही लगवाएं, हाँ, आपके लिए करें, वो कुछ भी करते रहे, कुछ नहीं होगा अगर आप इस्राएल।
मगर इजराइल बनने के लिए हमें कुश्ती करनी पड़ती। कितने लोगों को पता है कि जो याकूब था, उसका नाम याकूब, पहले याकूब था, फिर उसने खुदा के फरिश्ता के साथ जंग की, कुश्ती लड़ी और पूरी रात लड़ता रहा, और उसके बाद उसका नाम क्या कहा, तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। उसने कहा आज के बाद तेरा नाम इजराइल है। हालेलुया। हाँ, और इजराइल का मतलब पता क्या है? लाडला। आप खुदा के लाडले बन गए आज से। हालेलुया। हाँ, जो बन गया वो जोरदार ताली बजा सकते हैं। आप खुदा के लाडले बन गए हो। खुदा आपको लाडों में रखेगा, आपको प्यार करेगा। हमारा जो बच्चा होता है, हम उसके लाड के लिए महंगे से महंगा गिफ्ट ला के उसे देते हैं कि मेरे बेटे को ये साइकिल पसंद है, मेरे बेटे को ऐसा सूट पसंद है, मेरी बेटी को ऐसी फ्रॉक पसंद है, मेरी बेटी को ये चीज पसंद है। ऐसे ही ना, जो अपने बाप का लाडला होता है, बाप हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। आप खुदा के लाडले बन सकते हो उस वक्त जब आप खुदा में आ जाओ। हालेलुया। फिर याद रखिएगा, हाँ वैसे भी मेरा ये तो मेरा तो सिग्नेचर है ना। लोग आज लोग कहते हैं जी याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, मगर उनके घर पे अफसून तो अफसून दूर की बात, उनके घर पे एक नींबू आ जाए, नींबू से ज्यादा पीला जो है याकूब हो जाते हैं। हाँ, एक नींबू आ जाए और अगर बिल्ली या कोई जानवर को परिंदा ले गया कुछ चीज, घर पे खून की थोड़ी सी छींटे आ जाए, वो परेशान हो जाते, 5 साल का खून आया। हाँ, तो काहे कि आप इस्राएल हैं, आपके अंदर अगर दिलेरी नहीं, बाइबल ये कहती है जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। और ये हर रोज जीने का नाम है। साल में कितने दिन है? 365 दिन है साल में। और आपको पता है बाइबल मुकद्दस में 365 मरतबा लिखा है डर मत खौफ ना खा। हालेलुया। एक एक दिन के लिए खुदा आपको कह रहा है डर मत खौफ ना खा, डर मत खौफ ना खा, क्योंकि तू मसीह यीशु में है, नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाते रही, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। आपके जादू, आपके टोने, आपके बाप दादा के लानते, आपके कर्ज, हर वो चीज जो आपके ऊपर थी अब खत्म हो गई है। अब तू विजय जी, दिलेरी में जी और बेदिल्ला हो, खौफ ना खा। हालेलुया। हाँ, ये है खुदा आपसे कहना चाहता कि आपको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज का डर होना चाहिए ना, वो एक चीज का होना चाहिए कि मेरा एक खालिक है जिसके आगे मैंने खड़ा होना है, जिसके आगे मैंने जवाब दिए होना है। जिस तरह खुदा ने अदन बनाया और उसके अंदर बाग बनाने के बाद खुदा ने क्या किया? दरख्त लगाए। सब कुछ आदम के बनाने से पहले खुदा ने आदम के लिए बना दिया। हालेलुया। आप भी उसी नस्ल से हो। अगर खुदा ने आदम को बनाने से पहले उसकी तमाम जरूरतें बना दी, आप भी उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आज के बाद आपने करना क्या है? आपने करना यह है, इस वचन में जीना है। और इस वचन में जीना ऐसे है कि आपने अपनी कमियों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर अपने आप को गालिब लाना है। बाइबल कहती है कि देखो मैं गालिब आ, तुम भी आओ। यानी कि हम आ सकते हैं। यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह जमीन के ऊपर रहकर प्रैक्टिकल लाइफ जी कर गया। यीशु मसीह को भूख भी लगती थी, यीशु मसीह को दर्द भी होती थी और यीशु मसीह को नींद भी आती थी। ये सब काम हमें भी होते ना। तो अगर यीशु मसीह ये सारे काम कर सकता था तो उसका मतलब है हम भी कर सकते हैं। बाइबल ये कहती है जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। इसका मतलब है हम पाक बन सकते हैं। ये लोग गलत फहमी अपने अंदर डालते रहते हैं कि जी इंसान गलती का पुतला है। नो, इंसान गलती का पुतला नहीं। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि पे बनाया और मेरा खुदा परफेक्ट खुदा है, उसके अंदर कोई कमी नहीं। हालेलुया। हाँ, अगर मेरा खुदा परफेक्ट खुदा है तो आपका भी वही है। अगर उसके अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, तो आप उसकी सूरत और उसकी छवि पे बने। इसका मतलब आपके अंदर भी कोई कमी घटी है नहीं, आप खुद रख के बैठे हो। हालेलुया। और अगर आपके अंदर आ भी गई है तो आपको खुदा दिलेरी दे रहा है, आपको एक लाइफ लाइन दे रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, यीशु मसीह में आजा, तेरा सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, अगर आ भी गया तो मैं तुझे फिर डांप दूंगा, तेरा नंगापन फिर से खत्म कर दूंगा यीशु मसीह में आने से। हालेलुया। तो इसीलिए आप सब घुटनों पे हो।